Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in today's lecture I will tell you about noun, types of noun and give you a brief explanation about each type of noun. Okay, so let's start today's lecture. What is noun? Noun क्या है? Noun refers to persons, animals, places, things, ideas, or events, etc. Nouns encompass most of the words of a language. अब नाउन में क्या इंक्लूडेड है? नाउन में पर्सन्स के बारे में हम बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में और किसी आइडिया या इवेंट के बारे में हम नाउन में इंक्लूडेड करते हैं। ये सारे जो भी हैं पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, ये सब नाउन में इंक्लूडेड हैं। नाउन कैन बी पर्सन। पर्सन में क्या आ जाता है? अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स है, जूली है, कैथरीन, माइकल, बॉब एक्सेट्रा, ये सब पर्सन के नेम्स हैं। अब इसमें आप दूसरे पर्सन्स के भी नेम इंक्लूडेड कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। नाउन्स में एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं। अ नेम फॉर एन एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम, जैसे डॉग है, कैट है, काउ, कैंगरू एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एनिमल्स। नाउन्स में क्या है? प्लेसेस भी इंक्लूडेड हैं। प्लेसेस यानी किसी भी जगह का नाम। अ नेम फॉर अ प्लेस लाइक लंदन, ऑस्ट्रेलिया, like Canada, Mumbai, etc. These all are the names of the places. So these places are also included in noun. Things like a name for a thing like bed, ball, chair, door, house, computer, etc. These all are the things which are included in noun. Idea, a name for an idea like devotion, superstition, like happiness, excitement, etc. These all ideas are also included in noun. So that was the definition of the noun which I have told you. I think you have understood the definition of noun. It's very easy. Now let's move on to the types of noun. So the very first type of the noun is the proper noun. A proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing, and there is no common noun for it. In written English, a proper noun always begin with capital letters. प्रॉपर नाउन में आप किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं, सिंगल पर्सन के बारे में या सिंगल प्लेस के बारे में या किसी सिंगल थिंग के बारे में आप बात करते हो प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन में कोई भी कॉमन नाउन नेम यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो कॉमन नेम फॉर इट। कॉमन नेम कोई भी नहीं है प्रॉपर नाउन का। तो प्रॉपर नाउन में सिंगल पर्सन की बात होती है, सिंगल थिंग के बारे में बात करते हैं प्रॉपर नाउन में, या सिंगल प्लेस के बारे में बात करते हैं। Now let's see the example of the proper noun. So example is Melbourne. Melbourne refers to only one particular city. Melbourne is the name of a city. अब एक सिटी के बारे में हमने बात की है तो एक पर्टिकुलर सिटी है यहाँ पे, सो दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। अब अगर पर्सन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अली। अली रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो दिस अली रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ऑस्ट्रेलिया, there is no other country named Australia. This name is fixed for only one country. So I hope this proper noun you have understood it clearly. It's very easy. Let's move on to the second type of noun, that is common noun. A common noun is a name for something which is common for many things, peoples, persons, like or places. It encompasses or particular type of things, person or places. कॉमन नाउन में हम किसी भी कॉमन चीज़ के बारे में बात करते हैं, कॉमन कंट्री के बारे में, कॉमन पर्सन या कॉमन थिंग्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कंट्री है तो कंट्री इज़ अ कॉमन, इट कैन रिफ़र टू एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर।
City, it can refer to any city like Melbourne, Islamabad, Toronto, etc., but nothing in particular. So, a common noun is a word that indicates a person, place, or thing, etc. Third type of the noun is the abstract noun. An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to ideas, qualities, and condition. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, बट वो फिज़िकली प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो सारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूडेड होती हैं। जैसे एग्जांपल है ट्रूथ, सच्चाई, लाइस, हैप्पीनेस, सोरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पेट्रियटिज्म, एसेट्रा। दीज ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यानी ये फिज़िकली इनकी एग्जिस्टेंस होती है बट वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेक्ड आई, सही है, कैन नॉट बी सीन। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद जो टाइप है नाउन का वो है कॉन्क्रीट नाउन। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन जो है वो अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इट refers to the things we see and have physical existence। अब कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसमें हम थिंग्स को देख भी सकते हैं और उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, तो चेयर की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी होती है और चेयर को हम देख भी सकते हैं। तो दिस इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्क्रीट नाउन लाइक टेबल, बेड, बॉल, वाटर, मनी, शुगर। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द कॉन्क्रीट नाउन। इसके बाद जो नाउन का टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन टेकन एन आर्टिकल लाइक अ, एन, द। काउंटेबल नाउन्स में हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अ आर्टिकल यूज़ होता है काउंटेबल नाउन में, एन होता है और द भी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन में। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बेड, बॉल, एसेट्रा। अब इन सारी थिंग्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो यू कैन से 1 चेयर, 2 चेयर्स और 3 चेयर्स। सो चेयर्स आर काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद जो नाउन का टाइप है वो है नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, एसेट्रा। इन सब को, वाटर को, शुगर को, ऑयल को, सॉल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन नॉन काउंटेबल नाउन। यू कैन नॉट से 1 वाटर or 2 water or 3 water because water is not countable। Okay, so the last type of the noun is collective noun। कलेक्टिव नाउन में किसी भी थिंग्स की कलेक्शन या पर्सनस की या एनिमल्स की कलेक्शन होती है जिसको हम कलेक्टिव नाउन में इंक्लूडेड करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल्स और एनिमल्स एसेट्रा। एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की सारी कलेक्शन में कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये एक फैमिली है। सो फैमिली इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्टिव नाउन। टीम, ज्यूरी, कैटल, ये सारे कलेक्टिव नाउन में इंक्लूडेड हैं। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन में दोनों होते हैं, प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। Collective nouns, however, like Americans prefer to use collective nouns as singular, but both of the uses are correct in other parts of the world। Like अमेरिका में ज़्यादातर collective noun singular यूज़ होता है, but बोथ ऑफ द यूजेस आर करेक्ट। बट दोनों यूजेस जो इसके कलेक्टिव नाउन के हैं वो करेक्ट हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट नाउन एंड टाइप्स ऑफ द नाउन। I hope you have understood the lecture clearly. Please do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos.
Thank you.